Assalamu alaikum, dear students. Uh, I am your course instructor, Ms. Ikra Iqbal, from the Division of Science and Technology, University of Education, Township Campus, Lahore. The topic that we are going to discuss in the started from the previous two lectures is project procurement management, and we have learned what we have learned so far is the definition, procurement management, outsourcing, the process of procurement management, the outputs that comes out of every step is basically mentioned in this chart. Then we've started discussing each and every step in detail, that is procurement planning, what went right due to procurement management, tools and techniques for procurement management, in which we've learned the technique of make or buy analysis. Then we've discussed an example of make or buy analysis, and we've discussed that how can you decide that whether it's about to purchase a thing or whether it's about to lease or outsource the thing. This was a detailed example that I've elaborated you in the previous lectures. Then we've discussed about type of contracts in the procurement process. Then the detail of post reimbursable contracts. After this, we've discussed that what are the risks that come in the way of buyer and seller, and we've discussed that the risks are basically uh, uh, inversely proportional for the buyer and seller, because if the risk of the buyer side is high, then the risk of the seller side should be low, and vice versa. After this, we have discussed the statement of work, that how can you elaborate the details that you want from your seller or your vendor. Then I elaborated you about a sample template of statement of work. These are some things that you can add in your statement of work, or you can add more into it also if you want to. Then the second phase come, and the phase was of solicitation planning. In solicitation planning, we discussed about request for proposal, request for quotations. Then I elaborated you about an example of request for proposal. It was an outline or a template of request for proposal. When the solicitation planning is done, the third step of procurement management was solicitation. And in this topic, we've learned that what solicitation basically is. And in today's lecture, we are going to discuss or study the fourth phase of procurement management, and this phase is about source selection. As you all know that we have finalized the things till solicitation. We have collected all the proposals, quotations, biddings, or whatever we want to collect. We have collected in the previous phase, that was the phase of solicitation. And in the fourth phase, we have to choose from the request for proposals, from request for quotes, and the proposals and quotations that we have got from those requests. Now we have to choose that which vendor or which seller we are going to start with, or to whom we are going to connect with. तो सोर्स सिलेक्शन इन्वॉल्व इवेलुएटिंग बिडर्स प्रपोजल्स. सबसे पहले जो आपको बिडर्स के प्रपोजल्स आ गए होंगे, और ये प्रपोजल्स आपको कौन से फेज में आ गए होंगे, ये वाले प्रपोजल्स आपको आ गए होंगे सॉलिसिटेशन के फेज में. मतलब कि आपका जो फेज 3 है उसके अंदर आपको जो वो है सारे प्रपोजल्स आपके आपने गेट कर लिए होंगे. तो इट वॉज द फेज ऑफ सॉलिसिटेशन, जिसके अंदर आपको आ गए होंगे सारे के सारे प्रपोजल. अगला है आपके पास चूजिंग द बेस्ट वन. मतलब कि अगर आपके पास पूरे एक लिस्ट बन के आ गई है, आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब आपने इनमें से कौन सा चूज करना है. मतलब दिस इज नॉट इनी मिनी माइनी मो कि आप इनमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे, आपको ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो आप इसको चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है. बल्कि आपको इसके लिए भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई टूल या कोई ना कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप ये फैसला करेंगे कि विच प्रपोजल इज द बेस्ट वन एंड विच प्रपोजल यू आर गोइंग टू चूज. पॉइंट नंबर 3 इज नेगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब आप चूज कर लेंगे तो फिर आप पूरी तरह से उनके पॉइंट्स के ऊपर चूज नहीं करेंगे, बल्कि आप उनमें से कुछ चीज़ों को निगोशिएट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या आप कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट यू पीपल वांट or what you want other party to be uh, understand.
टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। पॉइंट नंबर 4 इज अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अब आपने जब निगोशिएट कर लिया, आपने चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 की लिस्ट बन के आई है, आपने उनमें से 5 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अब उन 5 में से आपने 5 को निगोशिएट किया है, उन 5 में से अब आपने किसी एक को अवॉर्ड करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपका 5वां पॉइंट, चौथा पॉइंट होगा, दैट इज अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगली चीज आ जाती है, इट इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर्मल इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग वेंडर्स। अब ये जो सोर्स सिलेक्शन है, ये बेसिकली आपको हेल्प कर देती है इवेल्युएशन प्रोसीजर के अंदर कि आप किस तरह से वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला कि आप अपनी मर्जी से ऐसे ही कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं देते, बल्कि आपको इसके लिए तरीका, एक मेथड फॉलो करना पड़ता है। बायर्स ऑफन क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट। मतलब जो आपके बायर्स हैं, वो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके पास 20 के प्रपोजल्स आ गए हैं, तो आप उनमें से 5 को मे बी सिलेक्ट कर लें, एंड देन 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करें, तो आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट जो है वो बन जाती है बायर साइड पर। अब ये उन्होंने आपको एक सैम्पल प्रपोजल इवैल्यूएशन शीट दी हुई है, मतलब कि आपके पास सारे प्रपोजल्स आ गए और अब आपने उनको इवैल्यूएट करना है, तो ये आपके पास एक प्रपोजल इवैल्यूएशन शीट है। अब इस शीट के अंदर क्या है, तो जो पहले प्रपोजल वन की रेटिंग क्या है आपके नज़दीक और उसका स्कोर क्या बना। इस तरह से प्रपोजल 2, उसकी रेटिंग क्या है और आपका स्कोर उसके अकॉर्डिंग क्या है। देन प्रपोजल 3 और उसकी रेटिंग क्या है और उसका स्कोर क्या है। देन ये आपके कुछ टेक्निकल क्राइटेरियाज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने अपनी रेटिंग जो है करनी होती है, वेटेज देनी होती है हर प्रपोजल को। सबसे पहले है टेक्निकल अप्रोच, मतलब कि आपके जितने भी प्रपोजल्स हैं उनमें से कितनों ने टेक्निकल अप्रोच को इस्तेमाल किया, और आपके लिए टेक्निकल अप्रोच की वेटेज है 30%। मतलब टोटल 100% में से जो आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा या आपकी जो पूरी बिडिंग होगी या पूरी प्रोक्योरमेंट होगी, उसमें से आपके लिहाज से जो टेक्निकल अप्रोच है वो 30% मैटर करती है या 30% इंपॉर्टेंट है। फिर मैनेजमेंट अप्रोच, क्या आपने जो प्रपोजल्स आप तक पहुंचे हैं वो मैनेजेरियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपके लिहाज से मैनेजमेंट